बढ़िया सर। पहला तो फंडामेंटल है जो कि मैथमेटिकल फंडा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन हम यूज करेंगे रोटेशंस को और इन सब चीजों को और उनके थ्रू ग्रुप्स बनाएंगे। बट जो फिजिक्स में ग्रुप्स यूज होते हैं दे आर बेस्ड ऑन basic groups, abelian groups, fields, and vector spaces and linear transformation. These are basic informations. क्या क्या जैसे ग्रुप्स हम पढ़ेंगे, फील्ड्स पढ़ेंगे और उनके अलावा वेक्टर स्पेसेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। वो टॉपिक होने के बाद we are familiar with rotations and then we can define spatial orthogonal group and spatial unity group and etc. Right? So first thing we discuss here groups. And before groups, I want to discuss some basic informations. These are some postulates satisfied by some algebraic structure. अब वो होता क्या है आप देखो, मैं अगर एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ और उसे algebraic operations के साथ में डिफाइन कर दूं, मैंने एक सेट ले लिया, this set is suppose G and this is defined with some operation. Algebraic operations क्या क्या हो सकते हैं? They are addition or multiplication. ठीक है, so we use here star operation. Star is some binary operation. आप सब लोग म्यूट जरूर कर लीजिए लेकिन ठीक है। This star is binary operation and we can use two binary operations for vectors. One is addition, another is multiplication. Multiplication को हम लोग shortly dot से represent करेंगे, ठीक है। So this G with star is binary operation. This is known as algebraic structure. कोई भी सेट बाइनरी ऑपरेशन के साथ में उसे क्या बोलेंगे? algebraic structure. This algebraic structure suppose it satisfies some postulates. ठीक है, postulates हमारे पास कुछ है, they are postulates or you may say some properties, both are same thing. First postulate है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन या इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा पहले कभी ग्रेजुएशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी वर्ड यूज करते हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। What is closure property? If we take any two members, A comma B, they are belongs to the set capital G. This property hold for all A comma B belongs to G. I mean, if we take any two members of the set G, they satisfies the property A star B. This is also belongs to G. अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती तो आप बोलोगे क्लोज्ड है आपका सेट इस ऑपरेशन स्टार के साथ में। And I already discussed that star operation can be treated as addition or multiplication, right? The second property, property 2, that is property of associativity. For any three members A, B, C, which are belongs to the set G, if it satisfies the condition A star B star C. देखो बेटा हमने क्या किया, B star C एक ऑपरेशन लिया, ये एक मेंबर मुझे मिल गया, इस मेंबर को मैं एसोसिएट करता हूं अगर ए के साथ में तो कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब अगर मैं इस ऑपरेशन को चेंज भी कर दूं, मैंने एक बार क्या किया, ए के साथ में बी को ऑपरेट कर दिया और फिर बी के साथ में इनके साथ में सी को ऑपरेट कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है कि बी और सी का एसोसिएशन किसके साथ में हुआ, ए के साथ में हुआ, तो भी सेम वैल्यू मिल रही। ए और बी का एसोसिएशन किसके साथ में हुआ, सी के साथ में हुआ, तो भी हमें सेम प्रॉपर्टी सेम वैल्यू मिल रही। If this condition hold, then we can say this algebraic structure satisfies associativity property. Next, third property, this is called existence of identity. Existence of identity. If for each element
for all elements set A, there exists unique member which is E, and that is belongs to G, which satisfies the property such that you may say that A star E, this is equal to E star A. In this situation we can say we have some identity element which is E. मतलब एक ऐसा मेंबर जिसको किसी भी मेंबर के साथ ऑपरेट करो आपको सेम मेंबर मिलेगा, ए मिलेगा. गुड आफ्टरनून सर. हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर अभी स्टार्ट हो रहा है. एंड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. So this E is called identity of this group, right? Property number 4, this is existence of inverse. फॉर ईच एलिमेंट. देखो मैंने दोनों वर्ड्स अलग बोले. पहले वाले में क्या बोला, फॉर ऑल. और मैथमेटिकल नोटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं उस वर्ड का मीनिंग क्या है. इफ यू सी दिस मैथमेटिक्स जो भी आप पूरा पढ़ रहे हो, थ्योरी पार्ट को हटा दें, देन दिस इज जस्ट एप्टीट्यूड. आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है. तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की होनी बहुत जरूरी है. तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ फॉर ईच. If for each A belongs to G, हर एक मेंबर के लिए there exist A inverse belongs to G, या आप ये बोल सकते हो B belongs to G, which satisfies the condition such that A operated with B, I mean A star B, this is equal to E, and this is also equal to B operated with A. If this property hold, then we can say this B is inverse of element A, right? क्या मुझे मिल रहा है, A star B is equal to identity. Then this implies that B is inverse of A. And notation wise we can define this as A inverse. इसका मीनिंग ये नहीं कि 1 upon A है. This is just A inverse, notation of inverse of element A. Right? Next we will define that property number 5, which is commutation. Commutation क्या कहता है? आप सब समझते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग बोलते थे दिस मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट कम्यूटेटिव, बट कोई भी वेक्टर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है. तो ये कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी है which is as like this. This is A star B, this is equal to B star. This is property of commutation. अब जो मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई along with about कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो क्या चीज बनेगी. अगर सिर्फ प्रॉपर्टी 1 सेटिस्फाई होती है, in this situation we can say this is groupoid. राइट? किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं G विद स्टार की. तो G विद स्टार अगर सिर्फ प्रॉपर्टी 1 को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, ग्रुपॉइड होगा. ठीक है. If property 1 and property 2 they are satisfied, then we can say this is semi group. Right? If property 1, 2 and 3 satisfied, in this situation we can say this is monoid. If property 1, 2, 3 and 4 they satisfied, then we can say this is group. यार म्यूट कर लो बेटा सब लोग. And if property 1, 2, 5 satisfied, in this situation we can say this is abelian group, or you may say commutative group. I use that word abelian group. राइट? तो ये अगर हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है, मैंने बोला फर्स्ट प्रॉपर्टी सिर्फ सेटिस्फाई करता है अलजेब्राइक ऑपरेशन G विद स्टार, देन वी कैन से दिस इज ग्रुपॉइड. इफ फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज होल्ड, देन वी कैन से दिस इज सेमी ग्रुप. फर्स्ट 2
third property is hold, then we can say this is monoid. And first 4 satisfied, then we can say this is group. And if all the properties satisfied, then we can say this is abelian group, right? So that is basic structure of group, mathematical structure of group. और मुझे लगता है कि इसको देख के आप सिर्फ डेफिनेशन को समझे हो, हम प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ पा रहे कि आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनवर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है. So I'll take some example and start from some basic sets. सर कोई भी 4 प्रॉपर्टी या फर्स्ट 4 करेंगे तभी ग्रुप होगा. मैंने स्पेशली लिखा है बेटा यहाँ पे 1 2 3 and 4. It means first 4 properties, right? So let's take some example on this. तो पहला एग्जांपल अब देखिएगा. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद एडिशन. ये n का नोटेशन आप जानते हो. दिस इज फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद एडिशन एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन? They are group or not? Or what kind of property they will satisfy? अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स पिक कीजिए. मैं पहली प्रॉपर्टी से चल रहा हूं और फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हुए चल रहा हूं. इफ वी टेक एनी 2 नंबर्स व्हिच आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे आपने 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, देयर एडिशन, दिस a plus b, this is also belongs to set of natural numbers, right? It means that closure property hold, पहली property hold हो रही है. मैं स्पेशली लिख भी देता हूँ मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड. प्रॉपर्टी सेकंड के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो हमेशा होल्ड होती है. आप जितने भी फिजिकल एग्जांपल्स लोगे सब में प्रॉपर्टी सेकंड एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है. सो मैं जा भी नहीं रहा हूँ उसके ऊपर, आप मानते हुए चलिए दिस प्रॉपर्टी होल्ड ऑलवेज. सो इफ वी से 3 members which are natural numbers, then easily we can say this a plus b plus c, this is equal to a plus b plus c, right? So this property is also hold, right? Next, if we discuss the property number 3, what is the value for identity element? आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी? अगर आप देखोगे थर्ड प्रॉपर्टी को, तो थर्ड प्रॉपर्टी में इसने कहा फॉर एवरी मेंबर व्हिच इज बिलोंग्स टू सेट जी वी हैव यूनिक ई व्हिच इज आइडेंटिटी एलिमेंट which satisfy the condition that a star e is equal to a and this is equal to e star a. I mean, if we pre-operate with element or if we post-operate with element a by e identity element, there is no change, the value becomes same equal to a. If this thing happen, then we can say we have identity element, and so this property existence of identity hold. So what can you say about this? The operation is of addition. तो addition के operation के लिए what is our additive identity? कोई बताएगा बेटा? 0 0 0 बिल्कुल बेटा. 0. वेरी गुड. एडिटिव आइडेंटिटी 0 मतलब बेटा हम नॉर्मल बिहेवियर में देख रहे हैं ना, जो वही चीज आप देखते चलो. कोई भी नंबर 5 लिया, उसके साथ कितने का एडिशन करो कि भाई मुझे 5 मिल जाए, बस बेसिक सी चीज है, ठीक है ना. सो एडिटिव आइडेंटिटी इज नथिंग, दिस इज 0. एंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1 बिल्कुल. दिस इज 1. सो बेटा यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 जो है हमारे पास, वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करती. 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो व्हाट कैन यू से? दिस इंप्लाइज प्रॉपर्टी थर्ड नॉट होल्ड, तो उससे आगे बढ़ना ही नहीं है. प्रॉपर्टी 1 and 2 जस्ट these two properties semi group. very good. So we can say that set of natural numbers with addition, this is semi group. तो ये पहली प्रॉपर्टी है. अब दूसरा एग्जांपल, इसमें प्रॉपर्टी 1 होल्ड हो रही है. समझ रहे हो सब लोग? 2 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर होता है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ. प्रॉपर्टी 2 होल्ड हो रही है, एसोसिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए. प्रॉपर्टी 3 भी होल्ड हो रही है बिकॉज 1
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है और ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। तो 1 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग करती है, जो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, 1 into a is equal to a into 1. So this third property also hold, but property 4 not hold. इनवर्स किसी एंट्री का एग्जिस्ट नहीं कर रहा. व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मैं मानता हूं सपोज मेरे पास वैल्यू a है और हमने इनवर्स एलिमेंट ढूंढने की कोशिश की, सपोज वो कितना है, b है. व्हाट इज प्रॉपर्टी? अब देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ आई से फॉर each member a belongs to G, there exists b belongs to G such that a star b is equal to e. E is identity और b star a is equal to e. ठीक है ना? तो आइडेंटिटी मुझे कितना मिल रहा है, 1. तो a star b 1 के इक्वल होना चाहिए. क्या कभी हो सकता है अगर मैं एक नंबर लेता हूं 3 जो कि एक नेचुरल नंबर है, स्टार ऑपरेशन डॉट है यहाँ पे b, तो ये 1 आ रहा है, तो b की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? दिस इज 1/3. दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर. अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी. इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है और पहली 3 प्रॉपर्टी होल्ड होने के लिए क्या बनेगा? मोनोइड. वेरी गुड. तो ये अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हुई. सेम वे में हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, मैं उनको डायरेक्टली बोल रहा हूं आप, ठीक है, कि क्या क्या होंगे. आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क है. Set of integers with respect to addition. This is an abelian group. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं. Set of rational numbers with addition. This is an abelian group. Set of real numbers with addition. This is also an abelian group. Set of complex numbers with addition. This is also an abelian group. तो मैंने 4 सेट लिखे जो abelian group होते हैं, ठीक है. और बाय द प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो, जो जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिखाया, राइट. अब इनको अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो आप देखना इंटीजर्स का जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में abelian ग्रुप होने की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता. कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्या आप सोचते हो? पहली प्रॉपर्टी, 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर क्लोजर होल्ड हो गई, एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है बेटा. थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1, और 1 तो इंटीजर है तो 1 भी है इसके अंदर. इनवर्स की बात करें, अगर मैंने कोई इंटीजर 2 ले लिया तो उसका इनवर्स कितना आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 आएगा. 1/2 इंटीजर नहीं होता, इसका मतलब ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो ये क्या हो गया बेटा? आपका मोनोइड हो गया. इनवर्स कभी नहीं मिल पा रहा किसी भी एंट्री का, किसी भी एलिमेंट का. हाँ जी बेटा बोलिए. थोड़ी वीडियो रुक गई थी, फिर से बताना क्या बता रहे थे. मैंने बोला कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास, उसमें आप किसी भी इंटीजर की बात करो, जैसे मैंने 5 ले लिया तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डॉट ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, तो 5 का इनवर्स कितना आएगा? 1/5, एंड दैट 1/5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, राइट है ना. ये आपका सिर्फ पहली 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कैसा हो गया? मोनोइड हो गया. सिमिलरली अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें डॉट के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें डॉट के लिए, और बात करें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? मोनोइड होंगे. क्यों होंगे? कोई मुझे बताएगा? इनवर्स की प्रॉपर्टी यहां इन तीनों में क्यों फेल हो रही? बताइए बेटा. एनीवन जिसको भी कुछ दिखता है, क्यों फेल हो रही है? I say these 3 sets are monoid. Set of rational number or set of real number or set of complex numbers, they are containing the member 0 and 0 has no inverse. सर इरेशनल नंबर आ सकता है क्या? नहीं बेटा, इरेशनल की बात मैं अभी करता हूं. अभी मैं पहले इन तीनों एग्जाम्पल को आप देखो. मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई रैशनल का सेट है या कोई रियल का सेट है या कोई कॉम्प्लेक्स का सेट है,
तो फॉर दीज थ्री सेट आप क्या बोल पाओगे इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड होगी? इन तीनों सेट में जीरो मेंबर लाई करता है ना? जीरो इज अ रैशनल नंबर, Yes, sir. रियल नंबर, जीरो इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? बट जीरो हैज नो इनवर्स। अगर आप जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखोगे तो कितना मिलेगा? 1/0। तो 1/0 तो डिफाइंड नहीं होता, तो ये मोनोइड है। एज जीरो बिलोंग्स टू रैशनल और रियल और कॉम्प्लेक्स तीनों सेट में, ठीक है ना? तीनों सेट में लाई करता है, बट जीरो हैज नो इनवर्स। फॉर विच ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन, नॉट फॉर एडिशन। एडिशन के लिए तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? मल्टीप्लीकेशन के लिए आ रही है। तो ये तीन बातें हुई। बट अगर मैं इन तीनों सेट से जीरो हटा दूं, किस किस से? रैशनल से, रियल से और कॉम्प्लेक्स से। अगर जीरो हटा दूं तो ये सेट कैसे हो जाएंगे? एबेलियन ग्रुप हो जाएंगे, तब परेशानी नहीं, ठीक है ना? तो हमने एक पॉइंट और लिख लिया है यहाँ पे। अनदर एग्जांपल, दिस इज Q स्टार with dot. What do you mean by Q star? Q star का मतलब, जैसे मैं कोई सेट A स्टार लिख रहा हूँ, तो A स्टार का मतलब है कि आप A से उसकी एडिटिव आइडेंटिटी को रिमूव कर दो। ये जीरो जो मैंने रिप्लेस लिखा है यहाँ पे, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी सेट अगर एडिटिव आइडेंटिटी रख रहा है तो उसमें उस एडिटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? तो जो मैंने Q स्टार विद मल्टीप्लिकेशन लिखा, अब जीरो हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सेट ऑफ रियल नंबर्स स्टार विद मल्टीप्लिकेशन लिखा, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार विद मल्टीप्लिकेशन लिख लिया, ठीक है? ये तीनों के तीनों सेट्स कैसे होंगे? दे आर अबेलियन ग्रुप्स। आई थिंक बात सबको समझ में आई होगी, राइट? सो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो कि सेट्स की फॉर्म में थे। अब मैं मैट्रिक्स का काम करना शुरू करता हूं, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली चलना उसी पे ही है, ठीक है? बिकॉज द टॉपिक इज लीनियर अलजेब्रा। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट एग्जांपल 4। The set capital S is equal to collection of all matrices whose all entries are same. Suppose they are A. The order of the matrices are 2 cross 2, such that this A is belongs to set of real number, right? Except the point 0. मैं जीरो को पिक नहीं कर रहा हूं, ठीक है? ये बात मैंने बोली, ठीक है? तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे the set capital S. Then the question is S with star operation. What is that star operation? That star is matrix multiplication. तो ये ऑपरेशन मेरे पास है, कौन सा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देन एस विद ऑपरेशन स्टार, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप, सेकंड ऑप्शन अबेलियन ग्रुप, थर्ड ऑप्शन, थर्ड आप ले लीजिए सपोज मोनोइड, and fourth option is semi group. So which will be the correct option? कुछ लोगों ने आंसर भेजे, सी ऑप्शन कुछ लोग बोल रहे हैं, ओके। बट एक बार आप सही से सोचो। Okay, one says that second option abelian group is correct. Okay, तो बेटा हम चलते हैं विद द प्रॉपर्टीज, ठीक है? I'll take 3 matrices सपोज जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी।
फर्स्ट मैट्रिक्स ले लिए सपोज ए ए ए ए, दिस इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर्ड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स बी मान ली। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी सेट के अंदर है उसकी सारी एंट्रीज सेम है एंड दे आर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो को। सो दीज आर आवर एंट्रीज बी 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 बी, दिस इज आल्सो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स इज दैट इज C C C C, this kind of matrix, this is also 2 cross 2 ordered matrix। तो ये तीन मैट्रिसेस मुझे दी हुई है ABC, राइट। अब ये बोलता है आपसे कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सोचना है। मैंने तीन मान लिए जिनका मैं यूज करने वाला हूं, तो प्रॉपर्टी 1 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या है, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसी सेट का मेंबर होना चाहिए। तो आपके पास तरीका क्या है कि इन दोनों का, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन इसी सेट के अंदर आएगा। तरीका ये है कि आप कोई भी दो मैट्रिसेस उठाते हो, उनका अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन के पास भी जो मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, उसके पास भी हर एक एंट्री सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स किसके अंदर लाई करेगी, सेट एस के अंदर लाई करेगी। मतलब यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए जिस प्रॉपर्टी की मैट्रिक्स आपके सेट के अंदर। So when we take this closure property and we take that matrix, suppose this is capital A, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया A into B, तो क्या मिला, this is A A A A and this is multiplied with B B B B, this is equal to, that is twice of AB and this is twice of AB। यही तो आ रही है सारी एंट्रीज, है ना। और तुम देख रहे हो इस मैट्रिक्स की भी सारी एंट्रीज सेम है। सो दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू एस, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। मैंने प्रॉपर्टी 2 एसोसिएटिव के लिए बोला कि वो तो भाई होल्ड हो ही रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं उसे लिख भी नहीं रहा हूं बेटा, आप खुद कर सकते हो 3 का मल्टीप्लिकेशन, नो नीड टू सॉल्व दिस। प्रॉपर्टी नंबर 3 which is existence of identity। आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और क्या प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की, कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट द सेम मैट्रिक्स। सपोज आई टेक दैट कैपिटल E एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितना मान लिया, सारी एंट्रीज स्मॉल e ले ली बेटा, ठीक है। कैपिटल E को क्या बोला, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए क्या किया, एक मैट्रिक्स ए थी हमारे पास जिसकी सारी एंट्रीज मैंने स्मॉल ए ले ली और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ई को जिसकी सारी एंट्रीज स्मॉल ई ले ली, क्योंकि भाई ई जो भी होगा वो भी तो इसी ग्रुप का, इसी सेट का मेंबर होगा कि नहीं होगा। तो ये बिलोंग किसको कर रहा है, एस को ही बिलोंग कर रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स ए ए, ऑल द एंट्रीज आर। द लेफ्ट साइड बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ ट्वाइस ऑफ ए ई, all the entries are twice of A, and that right side is equal to small a, सारी एंट्रीज कितनी, स्मॉल है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं कब, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। तो यहां तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है ना। तो twice of AE, this is equal to A, and that implies because A is non-zero element, तो आप A को A से डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, और आपको E का वैल्यू कितना मिल गया, हाफ। So the identity matrix E, this is equal to half, half, half और half। तो आज तक तुम लोग पढ़ते थे ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, ऐसी होती है 1 0 0 1। तो ये बेटा किसी स्पेशल काइंड के लिए होती है, किसी स्पेशल काइंड के ग्रुप के लिए, सेट के लिए होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्म में। ये हमेशा आइडेंटिटी से नहीं बोलेंगे, वो तो हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए इसे डायरेक्टली बोल दिया करते थे। उसे भी क्यों बोलते हैं उसका भी मैं एक एग्जांपल लूंगा। बट जब इस टाइप के सेट की बात हो रही है, जिस सेट में सारी मैट्रिसेस इस टाइप की हैं कि उनकी सभी एंट्रीज सेम है, तो उस केस में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी मिल रही है, जिसकी सारी एंट्रीज हाफ आ रही है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी सबको। We can't take that matrix as a member of the given group 0 1,
नहीं ले सकते इसे, क्यों? क्योंकि इसकी सारी एंट्री सेम नहीं है, इसमें 2 एंट्रीज 1 आ रही है और 2 एंट्री 0 आ रही है, तो ये आइडेंटिटी कभी इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता, राइट? सो Yes, sir. very good. Next we are going on the property number 4, which is existence of inverse. सर एक्सक्यूज मी, Yes बेटा, आप प्लीज एक बार ऊपर वाला बात दोबारा बता दो। कौन सा? existence of identity. हाँ जी सर, मतलब ई यहाँ पे 10 जो हमने कैपिटल ई जो आपने ई लिए है वो हाँ। 10 नहीं है मतलब। नहीं, बिकॉज मैं उन्हें 10 ले ही नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि हमारे पास जो भी सेट दिया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसकी सारी एंट्री सेम होनी चाहिए मैट्रिक्स की, राइट? हाँ तो मैं जी, इनको कभी ले ही नहीं सकता उस फॉर्म में, तो मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ ठीक है, आइडेंटिटी। ओके सर, ठीक है, ठीक है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो हाँ जी एग्जिस्टेंस ठीक है, ऑफ, थैंक यू सर। वेलकम। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो इनवर्स के लिए मैंने मान लिया सपोज बी मैट्रिक्स है, दिस इज इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, सपोज दैट इज ए एंड इट्स एंट्रीज आर बी, ऑल एंट्रीज आर स्मॉल b, ठीक है? दिस इज सपोज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कैसी ली गई है? दिस इज ए, all entries are A. So when we multiply these two matrices, what happens? That AB, this is equal to identity होना चाहिए। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी ही मिलेगा। अब आप देखो कितना मिल रहा है। ए मैट्रिक्स है ये, दिस इज मल्टीप्लाइड विद बी एंड दिस इज इक्वल टू ई। Left multiplication becomes twice of AB and twice of AB. All entries are same, they are twice of AB, and this is equal to, here in right, all entries are same, they are small e. If these two matrices are equal, then what happen? This implies that, and what is E? Identity matrix है क्या? वो तो निकाल चुके हैं पीछे हम लोग। This is half, right? So when we equate these two matrices, again we have that property 2AB is equal to half, and this implies that B is equal to 1 upon 4 times A. So we get that B, which is inverse of A, inverse B exists कर रहा है, which is equal to 1 upon 4A, 1 upon 4A, means all entries are 1 upon 4A. Right, beta? So that is inverse of this matrix. Along with this operation, matrix multiplication, as well as along with the property of matrix. What kind of property? Its all entries are same. So this is inverse of the matrix, right? So हमने देखा कि हमारी चारों प्रॉपर्टीज पहली सेटिस्फाई हो गई, ग्रुप तो ये बन ही रहा है, जस्ट हमें चेक करना है दिस इज अ abelian ग्रुप और नॉट। सो वी आर गोइंग ऑन प्रॉपर्टी नंबर 5। AB इक्वल टू BA होना चाहिए ना, और मुझे लगता है वो दिखेगा आपको, क्योंकि मैं अगर AB का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स मिल रही है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना मिल गया? ट्वाइस ऑफ AB। और फिर से स्प्लिट करता हूं तो मैं ऐसे स्प्लिट करके भी लिख सकता हूं, क्योंकि इनका भी मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस ऑफ AB की ही फॉर्म में आ रहा है। देख लीजिए आप लोग, आप ये कर सकते हो कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करके बाद में AB इक्वल टू BA दिखा सकते हो। तो यहाँ पे AB इक्वल टू BA हो रहा है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेशन भी होल्ड हो रहा है, ठीक है ना? दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। Right? So what can you say? This implies the structure that S with star क्या था? Multiplicative, matrix multiplication था। This is an abelian group। ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया?
किसी ने बताया था पहले? सेकंड ऑप्शन, बहुत अच्छा। आ रहा है समझ में? अब अंडरस्टैंडिंग बन रही है ग्रुप के ऊपर कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम और लेता हूं, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स इन नेट एग्जाम, जून 2017। Which of following forms a group under matrix multiplication? Multiplication. और ये बेटा 4 आपको सेट्स दिए हुए हैं। पहला सेट, और इसमें से दी हुई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 A 0 1 0। मैंने जो बातें बताई आपको वही सोचनी है और थोड़ा टाइम लेना है, सॉल्व करना है। अब शुरू कर दो फर्स्ट वाले से। इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, मतलब 2 इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं इसके पास, ए और बी। तो आपको ध्यान रखना कि 2 ही इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ए एंड बी, और उनकी जो लोकेशन है वही लोकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा रिमेनिंग लोकेशंस में 1 आना चाहिए और 0 आना चाहिए, जिस जिस लोकेशन में जो एंट्री दी गई है। इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना। आपको नंबर्स काउंट नहीं करने, आपको लोकेशन देखने की, लोकेशन कहां पे थी। नेक्स्ट वन इज दैट 3 again 3x3 ordered matrix 1 A 0 0 1 B 0 0 1। मतलब मैट्रिक्स टॉपिक खत्म नहीं होता है। लीनियर अलजेब्रा ये लगातार चलता रहता है। अब आप कंटिन्यूएशन में धीरे धीरे स्पेस की तरफ आने वाले हो, कैसे कैसे स्पेस बन सकता है। 1 A 0 that 0 1 B and last one is 0 0 1, and that again this A comma B belongs to set of real numbers. Fourth option is this is 1 B 0 and that A 1 0, and this last column is 0 0 1, A comma B belongs to R. मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि आप सारी प्रॉपर्टीज को पहले फर्स्ट ऑप्शन में चेक करो, फिर सेकंड ऑप्शन में चेक करो। उससे क्या है, टाइम आपका खर्च ज्यादा होगा। हम जानते तो हैं कि भाई नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो टाइम टेकिंग होगा, नो डाउट होगा, लेकिन आपकी थोड़ी सी भी स्मार्टनेस ना इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करवा सकती है आपसे। तो वो स्मार्टनेस क्या हो सकती है कि आप सारे ऑप्शंस में फर्स्ट प्रॉपर्टी को पहले अप्लाई करके देखो, विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अल्टीमेटली काम तो वही करना है आपने को। और ये तो है नहीं ना कि आपने जिस ऑप्शन पे हाथ रख दिया वही करेक्ट हो गया। जब हाथ रख के करेक्ट हो गया तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो तरीका क्या रहेगा कि आप सारे ऑप्शंस को उठाओ और उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले चेक करके देखो, सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने मना किया। फिर देन आप थर्ड प्रॉपर्टी पे आओ, फिर थर्ड प्रॉपर्टी को सारे ऑप्शन में चेक करो। अगर फर्स्ट के थ्रू ही आंसर आ जाता है, मैंने बहुत बार देखा है कि वो सारे ऑप्शंस फर्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू ही सेटिस्फाई होकर आपको ऑप्शन दे देते हैं। यही स्मार्टनेस है, मतलब यही आप सीख रहे हो। तो शुरू करो बेटा, which will be the correct option। और कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आपको अगर एक दो टर्म्स भी बिहेवियर को चेंज करती हुई दिखती है ना, तो आप बोल दोगे कि वो आपका ग्रुप नहीं होगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। वन स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। 2 लोगों ने आंसर दिया, यस। थर्ड ऑप्शन सब लोग बता रहे हैं, तो कारगर हुआ ना जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। कितना कम टाइम लगा देखो आपको, और ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन।
मैं ये चाहता हूँ कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस 1 मिनट के हेर फेर में खत्म करना है, बिकॉज हमको टाइम भी मेंटेन करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इस टाइप की कोई शॉर्ट ट्रिक चल नहीं पाती। ठीक है, कई सारे लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट भी है बेटा। मैं चेक करके दिखाता हूँ, जिनको आइडिया नहीं मिला वो देखिएगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन से मैं आपको जो सेट दिया हुआ है, मैं इनको सेट के नाम देता हूं। दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दैट इज S3 सेट एंड दिस इज सपोज S4 सेट, राइट? सो आई हैव टू चेक दैट S1 सेट अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये डॉट से लिख लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। दिस ऑपरेशन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या चाहिए? 2 मैट्रिसेस चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए। तो प्रॉपर्टी 1 देख रहा हूं, तो पहले मैट्रिक्स से ये लिख ली मैंने A1 0 1 0 एंड दैट B1 0 1 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ 1 0 A2 0 1 0 B2 0 1। 2 मैट्रिसेस चूज कर लें, ठीक है? अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं, अब जरा फर्स्ट एंट्री को देखना कितनी मिल गई। This is first row multiplied with first column, that is 1 plus A1 B2। बस बेटा, अब तो और कुछ निकालने की जरूरत नहीं। आपने देखा यहाँ पे इसकी फर्स्ट एंट्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और इसकी फर्स्ट एंट्री कितनी आ रही है, 1 plus A1 B2 आ रही है, जो कि A1 और B2 की वैल्यू को डिफर करने के बाद बदलती चली जाएगी। बट आपको चाहिए कितना था? 1 चाहिए था। इट मींस जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू S1 सेट। तो क्लोजर नॉट होल्ड, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट? बस यही काम, मतलब इतना छोटा क्वेश्चन होता है और आप सोचते हो बहुत लेंदी जा रहा है। अब चलो सेकंड वाले पे, S2 विद स्टार, फिर अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी 1। जैसे मैट्रिक्स मैंने ले लिया सपोज इस फॉर्म में 1 0 0 A1 0 0 B1। अब इसको A1 B1 मान लेते हैं और फिर यहां ले लिया 1 A1 0 एंड दैट 0 1, इसको A2 और इसको B2 0 0 1। फिर मल्टीप्लाई आपने किया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम। यहाँ थोड़ा फंसा मामला, क्योंकि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम तो एंट्री 1 आ रही है। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम, कितना मिल गया? ये मिल गया A2 plus A1। ये भी चलेगा, क्योंकि इनमें भी तो A1 A2 मतलब वेरिएबल एंट्रीज आ रही हैं, तो इसमें वेरिएबल एंट्री आ रही, चलेगा। लास्ट एंट्री लेकिन 0 होनी चाहिए। तो जब व्हेन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद थर्ड कॉलम, व्हाट हैपन? दिस इज B2 plus B1। मतलब नहीं, एक मिनट, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद थर्ड कॉलम 1 into 0 A1 into B2 एंड, ठीक है। तो ये मिला A1 into B2। फिर इसने कहानी खराब कर दी। मैंने कहा दिस इज नॉट बिलोंग्स टू S2 एज why? Because that A1 into B2, this should be 0, इसे 0 होना चाहिए था, इसको 1 होना चाहिए था। तो यहाँ तो 0 नहीं आ रहा, जबकि इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में सारी एंट्री तो 0 ही आ रही है। तो ये ऑप्शन भी गया, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट? थर्ड और सेकंड सेम ही है। फिर थर्ड को चेंज करना पड़ेगा। यस सर, थर्ड और सेकंड सेम ही है। थर्ड और सेकंड सेम है। फर्स्ट रो में ए को इंटरचेंज कर दो 0 के साथ। क्वेश्चन गलत नोट हुआ है ना यहाँ पे, इस हिसाब से तो चारों ही गलत हो जाएंगे, ये 0 और ये A। ठीक है, सर देख आप लेते हैं सही। बेटा। हाँ, देख लेते हैं, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे तो हम फिर से कर लेंगे। क्वेश्चन तो बेटा बन जाता है अपने आप ही। आ जाओ आप थर्ड ऑप्शन पे। तो थर्ड ऑप्शन बन रहा है, वो ले लिया S3 विद स्टार ऑपरेशन, डॉट ऑपरेशन। वो कितना हो जाएगा? इसमें फिर से प्रॉपर्टी 1 देख ली, 2 मैट्रिसेस मिल गई मुझे। These two matrices are in the form of 1 0 0 and that 0 1 0 and this is A1 B1 0, sorry 1।
ठीक है, और फिर लिख लिया 1 0 0 0 1 0 एंड दैट A1 B1 1 A2 B2 1, ठीक है। एंड दिस इज, जहां पे भी ना एक दो एंट्रीज मैच करनी शुरू हो जाए तो वहां पे छोड़ दो, फिर अगले ऑप्शन को चेक कर लो, क्योंकि अगर मैच होती चली जा रही है ना, दो तीन एंट्री हो सकता है वो करेक्ट ऑप्शन, तो क्यों पूरा काम करना है, ये देख लेना। तो जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 मिल गया, फर्स्ट रो को सेकंड बिल्कुल 0 मिल गया, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया, दिस इज A2 प्लस A1। यहां बेटा सेटिस्फाई हो रही है, मैं थोड़ा रुक रहा हूं, ठीक है, मुझे लगता है ये बन जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने देख लिया फोर्थ ऑप्शन को, तो चौथा ऑप्शन देखा S4 विद डॉट ऑपरेशन, तो उसकी प्रॉपर्टी 1 देख लो। अब फोर्थ वाले में जो मैट्रिक्स है उसमें एंट्रीज है 1A B1, ओके, दिस इज 1A B1, ये 0 ये 0, these are 0 and this is 1, तो ये A1 B1 मान लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स ले ली 1 A2 0, दिस इज B2 A1 और 0 0 0 1। अब अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, कहानी तो यही खत्म हो गई, मतलब यहाँ पे मुझे कितना मिल गया 1 प्लस A1 इंटू B2। अब ये जो एंट्री मिल रही है ना, दिस एंट्री इज नॉट बिलोंग्स टू, राइट, दिस एंट्री इज नॉट बिलोंग्स टू बिकॉज देयर शुड बी 1, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी दिस इज नॉट बिलोंग्स टू S4, तो ये ही आपका बिलोंग करेगा S3 पे, इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मैंने देखो S3 को भी पूरा कैलकुलेट नहीं किया, मेरे को लगा कि ठीक है दो तीन एंट्री सही हो रही है, इसका मतलब हो सकता है पूरा ही सही हो जाए, इसलिए मैंने आगे चेक नहीं किया, तो बोला S4 इज रॉन्ग एंड दैट S3 ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने S3 ऑप्शन को बताया। हेलो यस सर, मुझे ये समझा नहीं, आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये एंट्री 1 होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्यों? आपको, आप खुद सेट को देखो एक बार, क्यों आपको आंसर मिलेगा। सेट के पास जो मैट्रिसेस हैं उन मैट्रिसेस में रेस्ट्रिक्शन है ना, क्या रेस्ट्रिक्शन, अगर मैं सिर्फ थर्ड ऑप्शन को भी देखता, ये एंट्री 1 होनी चाहिए, ये एंट्री 0 होनी चाहिए, ये एंट्री A और B, मतलब A और B तो रियल नंबर है तो उनकी कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को। जो फिक्स्ड है वो कौन कौन सी, जैसे 1A 0 1 0 0 1, तो ये एंट्रीज तो हमारी फिक्स एंट्रीज हैं, इनकी वैल्यू तो सेम ही मिलनी चाहिए जो आपने ली है आप, राइट, ठीक है। सिर्फ A और B का वेरी हो सकता है, बिल्कुल, वो मेंशन कर रहा है आपको सेट में, देखो बोल रहा है ना A and B are belongs to A real belongs to R, ओके। सर so वहाँ पे जो 1 हाँ, प्लस A1 B2 का वैल्यू 1 होना चाहिए लास्ट वाले में, वो कैसे सेट हो रहा है एक बार बताइए। वो इसलिए बिकॉज बेटा कि आप यहाँ पे 1 देख रहे हो, यहाँ पे 1 देख रहे हो, दोनों मैट्रिसेस में 1 ही देख रहे हो ना, सेट की सारी मैट्रिसेस में 1 होना चाहिए यहाँ पे, हाँ सर ठीक। ठीक है, ओके चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट का, वो भी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, एंड द क्वेश्चन इज, मुझे ईयर तो याद नहीं किस ईयर का है, बट मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। दिस इज S is equal to capital A equal to Aij n cross n, ठीक है, such that Aij belongs to R for all I and J, ये गिवन किया हुआ है, then और सॉरी then S with matrix multiplication, then S with matrix multiplication is, your options are, first option is group, second option is semi group, third option is monoid, and fourth option is groupoid। ये बेटा गेट में पूछा हुआ डायरेक्टली,
सो व्हाट कैन यू से, बताइए। चेक करो आप लोग, सब लोग एक बार। अब इसने दी है ना n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस, उनकी एंट्रीज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब सारी एंट्रीज रियल है, मतलब दे कैन टेक एनी वैल्यू, डिफरेंट एंट्रीज भी पॉसिबल हैं, सेम एंट्रीज भी पॉसिबल हैं, कुछ एंट्रीज जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, सब बातें बोल रहा है, मतलब वेरिएबल एंट्रीज हैं बेटा। इससे पहले वाला क्वेश्चन यार तुम लोगों ने करेक्ट तो बोल दिया था, मतलब तुम रटे हुए थे क्या उस क्वेश्चन को, जब वो ऑप्शन खराब था तो रटा हुआ था। ऐसे मजाक में नहीं बोलना बेटा, आप करो, आप किसी ने अगर पहले भी किया हुआ है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आंसर की रट लोगे। मैं बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होने वाले, ये तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बताइए। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला मोनोइड होगा, बिल्कुल सही आंसर है, मोनोइड ही होगा। वो क्यों हो रहा है इसे देखते हैं एक बार। तो पहले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1 जो है हमारे पास, जीरो एंट्री होगी वही जो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल बेटा, नल मैट्रिक्स होगी, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके अलावा तुम ये भी बोल सकते हो सिंगुलर मैट्रिसेस भी तो इसके अंदर हो सकती है ना, इसलिए सारी स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन बोला है। यस सर। तो इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो प्रॉपर्टी 1 में मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं जो कि एस सेट को बिलोंग करती हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है, और तुम जानते हो कि दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है और सेम ऑर्डर का मिलता है, देन ए बी इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। नो प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, डायरेक्टली इतना तुम जानते हैं कि दो स्क्वायर मैट्रिसेस n क्रॉस n ऑर्डर की हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। So again property 2, ये तो आप समझ रहे हो, a into b into c this is equal to ab into c। भाई ऑर्डर थोड़ी बदल रहे हैं, हम तो ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं बस, a का मल्टीप्लिकेशन b into c के साथ में और a into b का मल्टीप्लिकेशन c के साथ में, तो बात तो एक ही है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये तो पीछे किया था ना उसी तरह। हाँ जी बेटा, और आप इसको आप जानते हो और इसके लिए आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सारी एंट्रीज डिफरेंट है, तो आइडेंटिटी इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, आई ही बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो ई मिल रहा है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कितना आ रहा है, आई आ रहा है, तो वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उस केस में इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ी है पहले, adjoint of A upon determinant of A, but we are not sure here the matrices are singular matrices or not। अगर मैट्रिसेस सिंगुलर हो जाएं तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाएगा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो this need not exist as this matrix A may or may not singular। तो थर्ड तक ही एग्जिस्ट कर रही है, फोर्थ फेल होते ही आपने बोला आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टीज यूज सेटिस्फाइड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सो वी कैन से दिस इज मोनाइड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोच शायद सबको समझ में आ रही होगी, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए।
सर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में भी हमेशा होल्ड करती है क्या? बिल्कुल बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है, मैट्रिक्स एडिशन के लिए भी होल्ड करती है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड हमेशा नहीं करते। ठीक है, डिफरेंस है ना इनमें, इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बदला बेटा आपने। आप अगर बोलते हैं ना ए बी ए इंटू बी सी दिस इज इक्वल टू बी सी इंटू ए, तो प्रॉब्लम होती, ऑर्डर थोड़ी चेंज किया। ओके ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं, मुझे लगता है बेसिक ग्रुप्स का कंसेप्ट आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, एंड देयर आर इनफ एग्जांपल फॉर दिस। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद वेक्टर स्पेसेस, एंड कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछे थे अबाउट डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस, तो बहुत इंटरेस्टिंग काम होने वाला है वेक्टर स्पेसेस। क्या मतलब वो स्पेस ऑफ वेक्टर्स, और स्पेस डेवलप होगा किस पे, एक फील्ड पे। अरे भाई नॉर्मली एक बिल्डिंग खड़ी करते हो तो क्या रखना पड़ता है, पहले जमीन तो चाहिए होगी ना, और जमीन के बाद डायमेंशन चाहिए होगी। वही डायमेंशन है जो डायमेंशन आप पढ़ते हो, द डायमेंशन ऑफ स्पेस, बेसिस, आधार, उस बिल्डिंग का आधार, उसका आधार बनाना पड़ता है, और आधार के थ्रू वो बिल्डिंग तैयार होती है आपकी। आधार किन किन चीजों पे टिका हुआ है एक बिल्डिंग का, बोलोगे उसकी हाइट पे टिका हुआ है, उसकी लेंथ पे टिका हुआ है, उसके ब्रेथ पे टिका हुआ है। तो ये तीनों चीजें क्या बता रही है, बिल्डिंग को डायरेक्टली देखते ही बता दे रही है कि दिस इज 3 डायमेंशनल बिल्डिंग, है ना। जस्ट लाइक एज दैट, मतलब आप बिल्कुल रफ लैंग्वेज में अगर इन वर्ड्स को यूज कर रहे हो जैसे मैं यूज कर रहा हूं, तो भी आप इजीली बता सकते हो क्या स्पेस है। तो स्पेस को बनाने के लिए मुझे एक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, राइट बेटा, एक फील्ड स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो पहली डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज अ फील्ड स्ट्रक्चर। हेलो यस सर, जब आप ऐसे बताते हैं ना, मैथ्स जो डेवलप हुआ ना, जिस हाँ। चीज के लिए डेवलप हो गया तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसमें। बिल्कुल बेटा, मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो कोशिश करता हूँ कि नहीं, कोई हम भी ऐसे चीज नहीं हो। चाहते कि हर एक चीज में ऐसे एप्लीकेशन देखे बैठे, थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, लेकिन थोड़ा जो बेसिक जब होता है ना, तब ऐसे कोई तो इंटरेस्ट हाँ, बढ़ जाता है उसमें। वो चीज बहुत आसान भी लगती है। हाँ, आसान लगती है, ये इम्पोर्टेंट। हाँ जी बेटा, तो हम देख रहे हैं फील्ड स्ट्रक्चर। अब फील्ड स्ट्रक्चर बेटा, अभी तक आपने देखे ना कितने ऑपरेशन यूज हुए थे ग्रुप में, वी आर टेकिंग जस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन। नाउ द सेट इम्पोज्ड विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशंस की बात मैं कर रहा हूं, राइट। तो अगर 2 बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे तो मजा आएगा। देखो कैसे, अब ऐसे कैपिटल एफ से मैंने एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन रख दिए, एक रखा एडिशन बेटा और दूसरा रखा मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट में हमेशा बार बार किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ फील्ड इफ। अब मैंने सब बातें तो मैं बताइए, बस छोटी छोटी डेफिनेशन इन होल्ड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन कि f with addition this is an abelian group। जीपी ग्रुप लिख दे रहा हूं शॉर्टली। हाँ, सेकंड बेटा मैंने क्या बोला, f स्टार विद मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज तुम जानते हो यार मल्टीप्लिकेशन की बात जब करूंगा तो जैसे ही दिखा कोई सेट एडिशन के साथ में एबेलियन ग्रुप बना रहा है, इसका मतलब उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, और अगर एडिटिव आइडेंटिटी थी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, उसका इनवर्स 1/0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बात ही गई। तो उस 0 को हटा देते हैं पहले, तो f में से स्टार लगा के 0 को हटा दिया। उसके बाद 0 का मतलब मेरा कहने का किससे है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी को हटा दिया, तो फिर वो डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ में एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. F holds distributive law. What is distributive law? That for all A, B, C, they are belongs to set F. A into B plus C, this is equal to A plus AB plus AC. ये properties hold होनी चाहिए. जो फील्ड होता है बेटा, जो मैंने जैसे कैपिटल F डिफाइन किया, दिस फील्ड इज सेट ऑफ स्केलर्स. वो क्या है? सेट ऑफ स्केलर्स है. दिस F इज सेट ऑफ स्केलर्स. तो हम कुछ कांस्टेंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं जिनका एडिशन के रेस्पेक्ट में भी क्या है? अबेलियन ग्रुप बन रहा है, जिनका मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी एबेलियन ग्रुप बन रहा है. लेकिन कब? जब आप एडिटिव आइडेंटिटी को हटा देते हो और वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं. अब तुमने दिमाग में सोचा कि सर कांस्टेंट का कलेक्शन मतलब नेचुरल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है. एक बात मैंने पीछे ही छोड़ दी थी, इरेशनल का वर्ड, इरेशनल का जो सेट है उसके लिए कुछ बोला ही नहीं. वो क्यों नहीं बोला? वो आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर एक नंबर √2 लिया जाए और दूसरा नंबर -√2 लिया जाए, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स हैं. अगर इन दोनों का सम करें तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा. और 0 इरेशनल नहीं होता, वो कैसा होता है? रैशनल होता है. बात समझ रहे हो मेरी? तो जो इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन है वो तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ही होल्ड नहीं कर पा रहा. दो इरेशनल्स का सम कितना मिल रहा है? रैशनल मिल रहा है इस वाले एग्जांपल के लिए. लेकिन आपको चाहिए कैसा था? इरेशनल ही चाहिए था क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होने के लिए. इसलिए इरेशनल का सेट कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी को ही होल्ड नहीं करता. मतलब वो तो ग्रुपॉइड ही नहीं होता, तो उसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं. तो अब मेरे दिमाग में आया नेचुरल का, कॉम्प्लेक्स का, इंटीजर्स का, रैशनल्स का और रियल नंबर्स का, कि वो होंगे या नहीं होंगे. तो आपने पीछे एग्जांपल्स लिए थे, मैं दोबारा उन्हीं के पास चल रहा हूं. ये देखिए, नेचुरल एडिशन के लिए एबेलियन ग्रुप नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन के लिए मोनोइड नहीं होता, सॉरी एबेलियन ग्रुप नहीं होता. ये तो मोनोइड पे टिक गया और ये सेमी ग्रुप तक रुक गया. तो भैया कहानी गई ना. इंटीजर की बात करें तो वो एडिशन के लिए तो एबेलियन ग्रुप है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए मोनोइड है. चाहे आप 0 हटा दो तो भी मोनोइड है, क्योंकि 2 इंटीजर है, उसका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हाफ मिलेगा, वो है ही नहीं आपके पास, तो वो भी गया. अब बात आती है रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स. तो ये तीनों के तीनों एडिशन के लिए भी एबेलियन ग्रुप है और इनके स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एबेलियन ग्रुप है. तो कौन कौन से फील्ड हो गए? रैशनल फील्ड हो गया, रियल फील्ड हो गया और कॉम्प्लेक्स फील्ड हो गया. तो यू मे टेक दीज एग्जांपल्स. और फ्रीक्वेंटली हम इन्हीं को यूज करते हैं जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, set of real numbers and set of complex numbers, they are fields, or you may say field structures. ठीक है, रैशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो तुमने कभी पढ़ा ना r³ यूज करते हो वर्ड, क्वांटम में यूज करते हो r⁴n, यूक्लिडियन स्पेस. तो r⁴n यूक्लिडियन स्पेस, उसमें r कहां से आ रहा है? r फील्ड है तभी तो आ रहा है. अगर r फील्ड नहीं होता तो कहां से आता? अब मैं बोल रहा हूं कि भाई दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर सेम स्पेस पे रखे हुए हैं. अगर इन दोनों का सम भी सेम स्पेस में आ जाए तो क्या होगा? वेक्टर स्पेस बन सकता है. लेकिन क्या इन दोनों का सम सेम स्पेस पे आएगा? आप कैसे श्योर हो? आप श्योर ही नहीं हो सकते तब तक जब तक ये वेक्टर्स की जो एंट्रीज हैं वो फील्ड एफ से ना आ रही, किसी फील्ड के एलिमेंट से ना आ रही हो. जैसे मैंने लिखा एक वेक्टर है a1, तुम समझना बेटा गौर से इसे. हाँ, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. और दूसरा लिख लिया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. देखो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दीज ऑल प्रॉपर्टीज कि क्या होता है. मैं जस्ट आपको लेमन वर्ड्स में बता रहा हूं बेटा, बिकॉज हमें तो यूज
करना है इन प्रॉपर्टीज को, उन्हीं लेमन वर्ड्स में आप समझने की कोशिश करते। अगर मैं बोलता हूं कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो है ये सब के सब बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को, तो अगर इनका सम करूंगा तो भी तो मुझे A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 नेचुरली मिलेंगे ना नेचुरल। हाँ या ना भाई बताना, मिलेंगे ना? यस सर यस सर यस सर। तुमने गलत बोल दिया, मेरे साथ भावनाओं में बह गए तुम लोग। मैंने नेचुरल बोला, तुमने भी कह दिया नेचुरल होगा सर। भाई अगर A1 2 हो जाए, अब ये ऑपरेशन पे डिपेंड करता है ना, मैं ऑपरेशन कौन सा कर रहा हूँ। अब यहाँ प्लस कर रहा हूं तो इसे माइनस भी कर सकता हूँ, जब भी प्लस आता है तो उसके साथ में नेगेटिव भी आता है। जो ऑपरेशन एडिशन का है तो उसके साथ में माइनस का ऑपरेशन भी तो आएगा। जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो उसके साथ में डिवीजन का ऑपरेशन भी आएगा। सोचना इस तरीके से, अगर माइनस का ऑपरेशन करता हो तो क्या होगा, अगर ऊपर 2 यहाँ 3 तो 2 माइनस 3 कितना आ गया, -1। क्या -1 नेचुरल होगा? नहीं है सर, और -2 होता तो भी 0 आता। हाँ बेटा, अब परेशानी क्यों ये ऐसी, क्योंकि हमने नेचुरल का एग्जांपल लिया और नेचुरल तो फील्ड होता ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे नेचुरल हटा के रियल नंबर्स रख लेता तो उसमें पॉजिटिव रियल नंबर भी आते और नेगेटिव रियल नंबर भी आते। आपने बोला इन दोनों का एडिशन करो, भाई -1 आया और -1 तो रियल नंबर ही है कि नहीं? समझ रहे हो जो ये बात मैं बोल रहा था? हाँ बेटा बोलिए। हाँ, तो जो मैं ये बात बोल रहा था, इस बात को हम फिर से लिखते हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है और मैंने क्यों ये एग्जांपल लिया, अब थोड़ा समझना। तो हमने फील्ड क्यों जनरेट किया, इस बात का मतलब तुम्हें समझ में आया होगा। तो हम हमेशा डेफिनेशन से कैसे वेक्टर स्पेस की, V दिस इज सेट ऑफ वेक्टर्स ठीक है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड कैपिटल F। और इस जो ये पूरा स्टेटमेंट लिखा ना बेटा, इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे, V ओवर F। ठीक है, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल F। तो कैसे लिख लिया, V ब्रैकेट में F पढ़ेंगे कैसे, V ओवर F, राइट। इफ these two properties hold, first one internal composition, इंटरनल कंपोजिशन क्या कहता है, ये कहता है कि भाई पहली बात तो यही होनी चाहिए कि सेट ऑफ वेक्टर्स V जो है वो एडिशन के साथ में अबेलियन ग्रुप बनाए। दिस इज अबेलियन ग्रुप, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दिस इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल का मतलब क्या हुआ बेटा, सेट ऑफ वेक्टर V के अंदर ही बात चल रही है, तो V के जो वेक्टर्स है उनका एडिशन हो रहा है, वो क्लोजर बना रहा है या एसोसिएटिव बना रहा है, उनके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, इनवर्स एलिमेंट है या नहीं है, वो कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट बहुत आसानी है क्योंकि वेक्टर्स का कलेक्शन लिया है, तो मुझे पता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगी तो मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज नहीं किया, क्या यूज किया यहाँ पे, एडिशन ऑपरेटर यूज किया। तो V विद एडिशन, सेट ऑफ वेक्टर्स विद एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो हम ऐसे कलेक्शंस की बात कर रहे हैं वेक्टर्स के जो कि एडिशन के साथ में अबेलियन ग्रुप बना रहे थे। दूसरी कहानी हमारे पास आई एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब एक्सटर्नली एलिमेंट उठा रहे हो। एक्सटर्नली कहां से उठा रहे हो, फील्ड से उठा रहे हो। तो मैंने एक स्केलर लिया जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को बिलोंग कर रहा है, और एक वेक्टर लिया अल्फा जो कि किसे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ वेक्टर्स को बिलोंग कर रहा है, V को। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस A विद अल्फा, A का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया, अल्फा के साथ किया, तो वो फिर से वेक्टर स्पेस के अंदर होना चाहिए। भैया आपने फील्ड अपने स्पेस के लिए बनाया ना, अपने स्पेस के लिए तो फील्ड बनाया, उसी फील्ड के ऊपर खड़ा किया है स्पेस।
अगर उस फील्ड के एलिमेंट का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से कर दिया, मतलब स्पेस के मेंबर से कर दिया, तो उसी स्पेस का मेंबर होना चाहिए। अगर नहीं होता तो स्पेस बन ही नहीं रहा, इसका मतलब हम तो खामखा हवा में है, स्पेस बन रहा है। स्पेस कब बनेगा? स्पेस तभी बनेगा जिस केस में आप बोलोगे द सेट ऑफ वेक्टर्स विद एडिशन इज अ एलिमेंट ग्रुप। ये तो पहली रेस्ट्रिक्शन है कि इंटरनली वो होल्ड हो सारी कंपोजिशन के लिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ फील्ड इफ इट इज मल्टीप्लाइड विद सम एलिमेंट, सम वेक्टर ऑफ द स्पेस, their multiplication should belongs to the space. This is our second property. बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। फील्ड में मैंने डेफिनेशन बताई है, आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि भैया क्या चीज होती है, आप सिर्फ रट के चले जाओगे क्यू आर और सी ही फील्ड होते हैं, इसके अलावा भी फील्ड होते हैं, ठीक है ना, बट दे आर बियॉन्ड द स्कोप आपके लिए। तो मैंने एग्जांपल भले ही मैं ये ले रहा हूं, बट डेफिनेशन वाइज आपको साउंड होना चाहिए, ठीक है। सर ये जो बाद में हमने वी यूज किया है कैपिटल वाला, ये कुछ अलग है क्या? ये सेट ऑफ वेक्टर्स नहीं है? नहीं सेम है बेटा, मैं थोड़ा स्टाइलिश बना रहा था ऐसे, तुम लोग नाराज मत हो। ओके सर। सेम है, तो ये चीज आ गई। अब देखते हैं एग्जांपल्स फॉर दिस। अब जैसे भाई मैंने पहला एग्जांपल लिया, दिस इज, अब एग्जांपल भी क्या, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप समझ चुके हो, मुझे लगता है बता दोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग, और इसी के साथ साथ हम 2-4 नोट भी लिख लेंगे, आर वेक्टर स्पेस और स्पेसेस, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे। हेलो यस बताइए सर, थोड़ा हाँ। वो जरा बताएंगे कि इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन बेटा, जैसे हम जो सेट ऑफ वेक्टर्स उठा रहे हैं ना, जिसको आप स्पेस बोलने जा रहे हो, हाँ ठीक है, उस सेट ऑफ वेक्टर्स के सारे वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करते हो। मतलब उन वेक्टर्स का एडिशन क्लोजर को होल्ड करता हो, एसोसिएटिविटी को होल्ड करता हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को होल्ड करता हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को होल्ड करता हो, और उनका वेक्टर एडिशन कैसा हो, कम्यूट करे। और आप तो जानते ही वेक्टर एडिशन कम्यूट करता ही है ना। ओके अब देखिए, which of the following are vector spaces? I take just small sets. मैं बहुत बड़ी डेफिनेशन लेके अभी सेट नहीं लेने जा रहा, वो लूंगा अभी। जैसे मैंने लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स विद सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेकंड ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। थर्ड ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फोर्थ ले लिया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिफ्थ ले लिया मैंने दैट आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर को डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आर स्क्वायर ओवर आर, ये ले लिया। ये तो खैर तुम बोल दोगे सर ये तो है, क्योंकि तुम पढ़ते आ रहे हो कई बार। और लिख लिया आर क्रॉस सी ओवर आर। नेक्स्ट लिख लिया सेवंथ सॉरी, that C cross R over C. So which of the following are vector spaces? More than one are correct options. फिफ्थ वाला है सर। फिफ्थ वाला है बिल्कुल, फोर्थ भी है। फोर्थ भी है, फर्स्ट भी है। ठीक है, फर्स्ट भी बहुत है। अच्छा, ठीक है। चलो अब एक बेटा दो नोट लिखता हूं, जिन लोगों को डायरेक्टली दिखा नहीं अभी तक वो लोग देखने की कोशिश करना। दोनों नोट मैं एज ए प्रूफ बता रहा हूं आपको, आप समझना है ना। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, पहले हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट 1, पहला नोट मैं क्या कह रहा हूं, इफ K and F they are some fields, और जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, that F is subset of K,
then I say this K over F is a vector space. और दूसरी बात मैंने कही यहाँ पे, this F over K, this is not a vector space. ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप समझना। अगर K फील्ड है, फील्ड होने की कंडीशन क्या कि सेट एडिशन के लिए भी एवेलेंट ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एवेलेंट ग्रुप हो, जीरो को हटाने के बाद, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे। तो भाई जब आपका K और F दोनों ही फील्ड है तो परेशानी किस बात की है। अगर K फील्ड है तो उसको अभी आप V से रिप्रेजेंट कर रहे हो इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से, V ओवर F बोला था ना, तो जो हमारा K फील्ड था इस समय वो सेट ऑफ वेक्टर्स की तरह ट्रीट हो रहा है। लीनियर वेक्टर भी तो बोला जा सकता है। आप ये देख के कंफ्यूज मत हो ना सर, वेक्टर बोल दिया तो फील्ड कैसे है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्पेस को कैसा ले रहे हैं। हमने मान लिया लीनियर स्पेस है, मतलब क्या हुआ, एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स का ही कलेक्शन में सोच रहा हूं, वैसे भी वेक्टर ले सकता हूं मैं। तो K हमारा एक फील्ड है, F भी फील्ड है। तो अब देखो बेटा इस K के लिए यहीं पे प्रूफ मैं हल्का सा तुम्हें देता हूं। K इज फील्ड, अगर ये फील्ड है देन दिस इंप्लाइज इंटरनल कंपोजिशन होल्ड हो गया, K विद एडिशन, दिस इज अबेलियन ग्रुप, राइट। दूसरी बात कि अगर आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात करें, ये तो था मेरे पास क्या, इंटरनल कंपोजिशन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या करते थे, एक एलिमेंट उठाते थे फील्ड का, यहाँ पे फील्ड कैपिटल F है, एक एलिमेंट उठाते थे स्पेस का, यहाँ पे कैपिटल K स्पेस है ना, राइट। K और F दोनों फील्ड, लेकिन इस स्पेस के लिए K ओवर F के लिए फील्ड कौन सा, F, और K क्या, सेट ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा K से एक एलिमेंट अल्फा उठाया और F फील्ड से एक एलिमेंट A उठाया, कोई भी एक, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया A इंटू अल्फा किसको बिलोंग करेगा, आप बोलोगे फर्स्ट क्लास K को बिलोंग करेगा, K को बिलोंग करेगा। बेटा आप सोचो क्यों करेगा, बिकॉज F तो सबसेट K का ही है। यस सर, सबसेट है उसका। हाँ जी। है ना, तो K के अंदर ही लाई करेगा। आया कि नहीं आया समझ में। तो जो बड़ा सेट है उसके अंदर लाई करेगा ना, तो इसलिए मैंने बोला पहला वाला वेक्टर स्पेस है। अब बेटा तुम समझ चुके होंगे दूसरा वाला क्यों नहीं है, बताओ कोई क्यों नहीं है। क्योंकि ऑल एलिमेंट्स लाइन क्योंकि बड़ा नहीं वो करेंगे है ना ना। सर। उसमें एलिमेंट सारे के सारे नहीं आएंगे। नहीं होंगे, बहुत अच्छा, सब लोग सही आंसर दे रहे हो। मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाले को मैंने डिस्कार्ड जो किया वो इसलिए किया कि इन सेकंड दैट एक्सटर्नल कंपोजिशन नॉट होल्ड। क्यों नहीं है, बिकॉज भाई अगर A उठा लिया जाए किससे, K से, और अल्फा उठा लिया जाए किससे, F से, मतलब F को स्पेस मान ले और K को फील्ड मान ले, इंटरनल तो होल्ड हो जाएगा, लेकिन फंसेगी बात कहाँ आके, एक्सटर्नल पे। अगर मैं A इंटू अल्फा बोलूंगा, भाई बड़े सेट का एलिमेंट है वो, तो बोलेगा बड़े सेट में जाऊंगा, तो किसको बिलोंग करेगा, K को बिलोंग करेगा। F से बाहर जा सकता है, इसका मतलब इट इज पॉसिबल, दिस इंप्लाइज इट इज पॉसिबल that A alpha is not belongs to K, F. So this F over K is not a vector space. बहुत धीमे धीमे मैं सब चीजों को लेके चला हूं क्योंकि मुझे पता है नए टॉपिक हैं, अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो शायद मुझे लगता है अब प्रॉपर बातें क्लियर हो रही हो, पूरी पिक्चर दिख रही होगी आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है बेटा, तो जो सिंगल वाले थे वो तो हमने करेक्टली बोल दिया। सिंगल वाले थे तो हमने करेक्टली बोल दिया। कौन कौन से, एक तो सेट ऑफ रियल नंबर ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, R फील्ड होता है, पढ़ा है ना ऊपर, QRC फील्ड है, तो R ओवर R वेक्टर स्पेस, R सबसेट खुद का, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। आर ओवर क्यू ये भी सेटिस्फाइड, क्योंकि क्यू और आर दोनों फील्ड है और क्यू सबसेट है आर का। यस सर। ठीक है, आर ओवर सी नहीं होगा बिकॉज आर सब। कॉम्प्लेक्स। अब ये इन तीनों का ऑर्डर, हाँ इन तीनों का ऑर्डर देखना बेटा, ये होता है, ऐसे सोचो। सी ओवर आर होगा, आर स्क्वायर ओवर आर। अब ये थोड़ा सोचते हैं दो के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। अब मैं इसके लिए भी एक फॉर्मेट लिख देता हूं यहाँ पे, तो तुम समझ ही चुके हो। एक और नोट लिख लो, दैट इज नोट 2। इफ k1 k2 and so on kn comma f, they are fields, they are fields with the condition that f is subset of k1 k2 and so on kn। f इन सब का क्या है बेटा, सबसेट है। सबसेट ही तो चाहिए ना, तो मैं क्या कह दूंगा, then the Cartesian product k1 cross k2 cross and so on kn, this over f be a vector space। मेरा सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है ना, वो तीन टॉपिक्स है जिनमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जैसे एक तो आपका लीनियर हो गया, फिर ग्रुप थ्योरी हो गई। ग्रुप थ्योरी के बाद हम पढ़ेंगे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन तीन टॉपिक में ज्यादा टाइम लग जाता है। और रीजन भी है क्योंकि बड़े टॉपिक्स और इनसे क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका वेटेज बहुत अच्छा है, उससे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। स्पेशल फंक्शंस वगैरह हो गया, ग्रीन्स फंक्शन हो गया, तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, ज्यादा टाइम देते हो। मैं इसीलिए शुरुआत में इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी दे रहा हूं आपको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, इनमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, और ये जस्ट फॉर्मुलेशंस ही हैं। कई तो आप फिजिक्स में बार बार यूज भी करते हो, बट मुझे लगता है कि इनफ टाइम होता है कि 3-4 क्लासेस में वो टॉपिक खत्म हो जाते हैं। तो सिलेबस की आप बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ बच्चों का मैसेज भी आता है, सर सिलेबस का कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। सिलेबस जो है वो नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। सर सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा, क्वांटम और एटॉमिक तो स्टार्ट ही नहीं किए अभी। बेटा जो शुरू नहीं हुआ वो जिम्मेवारी है, अब शुरू करेंगे, चिंता मत करो, उसका भी खत्म होगा, क्लासेस तुम्हारी बढ़ जाएंगे और क्या होगा। और एग्जाम नवंबर में नहीं होगा? एग्जाम नवंबर में बता रहा था। नहीं बेटा, एग्जाम नवंबर में नहीं हो रहा, वो सब मतलब अफवाह चल रही है। कोई एग्जाम नवंबर में नहीं हो रहा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन था भी नहीं। हाँ, वो एग्जाम वो बोल तो दिया उन्होंने कि एक्सटेंड कर दी है डेट इन बच्चों के लिए भी। नवंबर तक तो बेटा फॉर्म ही भरवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, है ना। 10 सितंबर तक है। दोनों मिला के दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे। 10 सितंबर तक दोनों मिला के दिसंबर में एग्जाम होगा। हाँ 10 सितंबर तक है बेटा। हाँ सर ऐसा तो नहीं होगा ना नवंबर में जाके एकदम से बोलेंगे एग्जाम है। अरे ऐसे कैसे, मतलब आप रोड पे नहीं आओगे, हम भी आ जाएंगे आपके साथ में, ठीक है, परेशान मत हो। तो बेटा दिस इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब तुम देख लो, r क्रॉस r ओवर r, दोनों r's का सबसेट ये r है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, होगा वेक्टर स्पेस। r क्रॉस c ओवर r होगा ना वेक्टर स्पेस। दिस r इज सबसेट ऑफ दैट r एंड दिस r इज सबसेट ऑफ दैट c, होगा। अब c ओवर r, सॉरी c क्रॉस r ओवर c, पहले c का सबसेट है चलेगा, लेकिन दूसरे c r का सबसेट तो नहीं है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। बस बन गई बात। सर एक तो बार ये कॉम्प्लेक्स वाला दोबारा बता दो सर। थर्ड एग्जांपल एक बार, जो थर्ड हमने लिया, थर्ड एग्जांपल। हाँ थर्ड ऑप्शन बेटा इसलिए नीचे का दिखा कि दीजिएगा जरा। हाँ मैं अभी स्क्रॉल करता हूँ, पहले तुम ये थर्ड एग्जांपल देख लो। इसमें बोला कि r ओवर c जो हमने लिखा है, c तो सबसेट नहीं होता ना r का, और हमारी डेफिनेशन क्या है कि f सबसेट k का अगर है तो k ओवर f फील्ड वेक्टर स्पेस बनेगा, ना कि f ओवर k। समझे बेटा? यस सर। बिल्कुल, मतलब इत्मीनान से पूछ लो, कोई डाउट हो तो
उसे किनारे करो बेटा, अभी आगे मत बढ़ो तब तक। सर हाँ भाई। सर लास्ट वाला और बता दीजिए। लास्ट वाला बेटा जो हमारा लास्ट 7 था, इसमें आपने देखा कि फील्ड है कितना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसमें पहला सेट K1 कितना है C, दूसरा सेट K2 कितना है R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो F जो है वो तो K1 का तो सबसेट है क्योंकि वो दोनों इक्वल है, बट F इज नॉट अ सबसेट ऑफ K2। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, F सबका सबसेट होना चाहिए। समझे मेरी बात को? ये कंडीशन, इसलिए ये होल्ड नहीं हो रहा। तो the seventh is not an abelian group, sorry, a vector space, right? ये कहानी हुई। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मींस के और एफ दोनों स्केलर्स हैं, तो वो वेक्टर कैसे नहीं जनरेट करेंगे वेक्टर दोनों स्पेस? बेटा नहीं, दोनों स्केलर्स नहीं, देखो दोनों फील्ड्स मैंने बोले, दोनों में स्केलर्स हैं। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सोचने का तरीका है। अब जैसे मैं अगर बेटा देखो आप इस प्लेन में हूं, अगर मैं इस प्लेन में मूव कर रहा हूं, तो मैं इस लाइन पे लाई करने वाले नंबर्स को क्या बोल दूंगा? स्केलर बोल दूंगा, बोलूंगा ना, जो लाइन ही रिमूव हो गई थी, ठीक है? यस सर। बोलूंगा, स्केलर ही तो बोलूंगा। अगर मैं इस प्लेन में हूं, अगर मैं इस प्लेन में नहीं हूं, मैं सिर्फ इस लाइन पे हूं, अब मैं क्या बोलूंगा? इस लाइन पे लाई करने वाले नंबर्स को वेक्टर्स भी बोल सकता हूं और स्केलर भी बोल सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? यस तो सर। ये सारी किस पे डिपेंडेंट है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हम सोच कहां पे रहे। बट आप स्केलर्स के सेट को सिर्फ लाइन पे ही सोच सकते हो, फील्ड के नंबर्स को आप सिर्फ एक लाइन पे ही सोच सकते हो, उससे बाहर किसी प्लेन पे नहीं सोच सकते। मतलब मैं आर स्क्वायर को एक फील्ड नहीं बोल सकता, आर क्रॉस आर को मैं सिर्फ आर को फील्ड बोल सकता, ठीक है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते ही वो सेट ऑफ वेक्टर्स ही बन जाएगा, उसको आप कभी फील्ड नहीं ले सकते। जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ है तो एक लीनियर सेट है आपके पास, उस लीनियर सेट को आप वेक्टर्स का सेट भी ले सकते हो और स्केलर्स का सेट भी ले सकते हो, ठीक है? सर मींस वन डायमेंशनल होगा ऑलवेज? हाँ जी, हाँ जी, वन डायमेंशन के लिए आप ऐसा कर सकते हो। ओके ठीक है, जी। ओके। तो अब बढ़ते हैं फिर और आगे। अब इन सारी बातों को सोचते हुए अब मैंने एक दो एग्जांपल्स और लिखे, सम स्टैंडर्ड एग्जांपल्स। सर लास्ट आप में एग्जांपल लेने वाले थे ना? हाँ हाँ हाँ, बस वही एग्जांपल। अच्छा, जो नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन करवाने आपको? हाँ करवाने सर। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन जिन्होंने पूछे वो कर लेते हैं। बहुत बढ़िया याद दिला दिया, नहीं तो मैं तो भावनाओं के बहाव में बह गया था तुम लोगों के साथ में। तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? सबको बताओ, सब शांत रहते हैं। हाँ सर, मजा आ रहा है Yes, सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। वेरी गुड भाई, दिल मत रखना मेरा, हाँ सही में अच्छा भी लगना चाहिए। नंबर देखूंगा मैं तुम्हारे सबके कितने आ रहे हैं नेट में बाद में, ठीक है? बिल्कुल सर। अरे हैंग हो गया। हाँ जी बेटा, देखिए कई सारे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं और बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है अब तो आपको आ भी चुके हैं, अब जल्दी से आंसर भी बताओगे मुझे। पहला क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज ऑफ ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। ऐसी सोच के बता दो, तुम्हें तो पता ही है, कुछ भी नहीं करना, ये तो बहुत मजाक सा था। 0 होती है। 0 होगा। हाँ, ऑल आर जीरो है ना? यस सर। सिर्फ यही पूछी हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब अब तो बस डेफिनेशन ध्यान दो और करना शुरू कर दो। ये बोला कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ए 3x3 मैट्रिक्स has unequal eigenvalues, unequal eigenvalues A, B and C,
ठीक है, एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज टी, इज कैपिटल टी। इफ a is equal to -1, b is equal to 2, d is equal to 4, then what is the value of c? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी बता दो। एक लाइन -2 बिल्कुल, because we know that d is equal to product of eigenvalues a into b into c, so this is 4 is equal to -1 into 2 into c। ये सेट का एग्जाम का पेपर है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड उतना खास नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया थर्ड, पूरा रेड रेड हो रहा है, मैं चेंज करता हूँ कलर। अगला क्वेश्चन है a matrix capital M of the form, ये दिया हुआ है, this is 0 minus of A star A 0, ठीक है, this is a 2 cross 2 ordered matrix। इसने कहा if determinant of A, this is equal to A नहीं M is equal to 1, determinant 1 दिया हुआ है, तो बोलता है the most general value of A is, most general value of A is, first option cos theta, second option sin theta। वैसे मुझे ये अभी नहीं करवाना चाहिए था, बट ठीक है कर लेते हैं, इतना मुझे लगता है आप कर लोगे। अगला है e to the power iota theta, और फोर्थ ऑप्शन है cos hyperbolic theta। बताइए, थीटा इज रियल पैरामीटर, ये बोला है। थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यूनिटरी मैट्रिक्स याद आ गया? यस सर। अब यूनिटरी Yes, sir. मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट 1 की, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बेटा यूनिटरी तभी होगी m into m dagger, this is equal to आइडेंटिटी अगर हो, है ना, तो इसका मतलब सारे कॉलम्स का नॉर्म 1 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ a this is equal to 1 and this is also equal to mod of minus of a star। अगर मैं cos थीटा और sin थीटा लिखता हूँ या cos हाइपरबोलिक थीटा लिखता हूँ, तो ये वैल्यू इनका मॉड 1 नहीं आएगा, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी एक ही है ना कि e to the power iota थीटा आप लोग रख सकते हैं। So the value of a is Yes, equal sir. to e to the power iota theta। मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें इसका डायगोनलाइजेबिलिटी का कांसेप्ट हुआ या ऑर्थोगोनलिटी ऑर्थोनॉर्मलिटी का कांसेप्ट पढ़ाया हुआ है। अब जैसे अभी बोला ट्रेस ऑफ एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, बोल दो कितना, 0 एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री सारी 0 होती है, ठीक है। अब अगला बोलता है बेटा आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, रियल, वेरी गुड, रियल, ठीक है। अगला बोल रहा है इफ कैपिटल A इज एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बताओ बताओ। अरे भैया डायरेक्टली सर इसके पहले क्या बोले थे सर, थोड़ा एक बार बताना सर इसका। ये बेटा थोड़ा सुन लो, मैं लिख रहा हूँ। इफ A इज, तुमने डायरेक्टली 0 बोल दिया, गलती मत करो, अभी रुको। इफ A इज एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, कितना, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, आप बोलोगे कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोलना चाहिए ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर। अगर ऑड ऑर्डर बोलेगा तो 0 आएगा, ठीक है। हाँ, तो अगला था नेक्स्ट सर, इसके पहले वाले सर क्या क्वेश्चन बताए थे? इससे पहले वाला था बेटा हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं, कैसी होती है, रियल होती है, ठीक, बहुत बढ़िया, तुम्हें पता है यार। अगला बोल रहा है बेटा द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k
for which the system of equations, पढ़ा चुका हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको, k plus 1 this into x plus 8 into y, this is equal to 4k, and this second equation is kx plus k plus 3y, this is equal to 3k minus 1. ठीक है, has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Tell me beta, the number of values of k. ये नहीं बोल रहा what is the value of k, क्या बोला, number of values of k. Yes, बताओ. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एक या ज्यादा. ठीक है, बट बेटा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलने के लिए क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. बहुत अच्छा, कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए सर. डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए. बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा. द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जीरो डिटरमिनेंट, या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 से कम, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होना चाहिए. दो ही तो वेरिएबल यूज है x और y. अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो क्या बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन. वेरी गुड. और डिटरमिनेंट जीरो तो क्या बोलोगे? या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, या नहीं, दो बातें, या नो सॉल्यूशन. या नो सॉल्यूशन. वेरी गुड. ठीक है, तो अब तो इनका मल्टीप्लाई कर लो. कितना हो गया? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 देन दिस माइनस 8k इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली बोल दोगे दो सॉल्यूशंस होंगे, और वो दो भी तुम्हें दिख गए. क्या क्या? -1 -3 नहीं, 1 और 3 आएंगे बेटा, देखो. ठीक है ना, 1 और 3 आ रहे हैं. यस Right? सर. हाँ, तो दो सॉल्यूशंस, तो कितने सॉल्यूशन? सो 2 वैल्यूज ऑफ k. अब एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसने बोला द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा आर. e टू द पावर प्लस माइनस आइटा. वेरी गुड. हाँ बिल्कुल सही, ये तो हमने क्लास में भी किया ना. यस सर. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, और इसका चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो. कितना होता है? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस दैट इज 2 cos थीटा into lambda plus determinant which is 1 equal to 0. This implies lambda equal to, quadratic equation का solution लिख रहा हूँ directly. This is cos theta plus minus iota sin theta, right? और इन्हीं को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक e to the power iota theta by Euler's formula और एक e to the power minus iota theta. ठीक है? Okay. The rank of the matrix. Next question is, the rank of the matrix. मैट्रिक्स दी है इस फॉर्म में 4 2 6 0 3 -1 2 5, और नेक्स्ट है बेटा 2 5 7 -8, और लास्ट है 1 4 5 -7. This is, yes, what can you say?
सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर बोला ना कि सर इंडिपेंडेंट रो के अलावा जो बताए थे रैंक का कॉन्सेप्ट, थोड़ा एक बार सर इस क्वेश्चन के जरिए बता दीजिए तो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैंने ये बोला था कि जब आप रैंक निकालते हो तो रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इन अवर मैट्रिक्स, एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज we take elementary row or column operations. What is our motto? We have to convert the given matrix as upper triangular matrix. ये काम करना है after elementary row operations. जब आप उस मैट्रिक्स को upper triangular matrix की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे रो ऑपरेशन से, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कन्वर्ट करते हुए जितनी रोज आपके पास नॉन जीरो आएंगी वो इंडिपेंडेंट रोज हो जाएंगी, और जितनी जीरो आएंगी वो डिपेंडेंट रोज हो जाएंगी। तो आपको तो इंडिपेंडेंट रोज को काउंट करना है, नॉन जीरो रोज को काउंट करना है आफ्टर रो एलिमिनेशन। तो आफ्टर रो रिडक्शन द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। बस ये आपका डेफिनेशन और एल्गोरिथम हो गया। बात समझे मेरी? हाँ सर। सर ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटा हम बताइए। अगर रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो हम साइड बाय साइड अगर कॉलम भी लगा सकते हैं उसमें? अब बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट क्यों, बट उससे ना आपका क्वेश्चन क्रिटिकल जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे करो कि जिससे लेंदी ना हो क्वेश्चन। आंसर मुझे नहीं पता यार, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। कितना है आपका? 3 आ रहा है। रैंक 3 आ रही है, ओके। चलो फिर करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मैंने क्या किया, R2 टेंड्स टू सॉरी R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R2 और ये अप्लाई कर दिया। हाँ भाई, एक चीज तो और भी दिख रही है क्या, कि आपका R3 इज टेंडिंग टू R1 प्लस R2 बन रहा है ना, देखना बन रहा है, देखना। हाँ बन रहा है। यस सर, यस सर। ले सकते हैं क्या? R2 सर, ये कर लो बस, ये कर लो, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। R2 टेंड्स टू सॉरी R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 प्लस R2। अगर ये कर दोगे तो आपके पास सीधे सीधे ये बन जाएगा 4 3 2 1 2 माइनस 1 5 4 और 0 0 0 0 और 0 5। सर R2 लिख दीजिए, वो R3 लिख के। हाँ बेटा बिल्कुल R2 लिख देते हैं, ठीक है, समझे ना मेरी बात को। ये चीज तो डायरेक्टली दिख गई। अब आप देखो इंडिपेंडेंट रोज कितनी मिल रही है, 3। हाँ या ना बताओ, मिल गई? यस सर। अब तुम चाहो ना ऑपरेशन करना तो भी कर लो, ना चाहो ऑपरेशन करना तो भी रहने दो। देखो बात तो वही मिलेगी, 3 इंडिपेंडेंट मिलने वाली। तो रैंक कितना मिल गया इसका मैट्रिक्स का? 3 मिल गया, बस खत्म, इतना ही काम है, ठीक है। अगर ये नहीं दिख रहा होता तो भी मैं क्या करता कि पहले इस वाली एंट्री को 0 बनाता, फिर इसको 0 बनाता, और एक ही लास्ट वाली तो 0 मिल ही रही थी, ठीक है बेटा। उसके बाद जब ये भी 0 हो जाती, ये भी 0 हो जाती, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ रोज मिलती, तो फिर मैं इनको और इनको 0 बनाने की कोशिश करता। सर वैसे भी तो देख सकते हैं ना इसमें डिटर्मिनेंट्स को, जैसे 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा। हाँ लेकिन बेटा 4 क्रॉस 4 का आइडिया तो आपको नहीं है ना। यस सर। तो उसके लिए तो फिर मुझे चेक करना ही पड़ेगा। ऑर्डर तो 4 क्रॉस 4 है ना हमारे पास, तो हम तो ये भी सोच सकते कि रैंक 4 हो जाए। अगर ये नहीं दिखता, मैं तब की बात कर रहा हूँ, कई बार नहीं भी दिख सकता। सर सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर को ही देखेंगे। हाँ बेटा, सबसे पहले आप हाईएस्ट ऑर्डर को देखोगे कि उसका कितना वैल्यू आ रहा है, उसके बाद आप ऑर्डर कम करना शुरू करोगे, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर जो R3 पे अगर ऑपरेट करके 0 करते हैं इसको और दोनों रो सेम आ जाती हैं लास्ट की, तो भी तो हम 3 कह सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो भी 3 कह सकते हो। आप ये भी कर सकते थे कि R3 में से आप R1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको यहाँ पे R2 मिल जाएगा, तब भी R2 और R3 सेम हो जाएगी। मैं पहले यही कर रहा था, Yes, sir. बाद में फिर मैंने ये ऑपरेशन यूज कर लिया, ठीक है, तो भी सेम है, राइट। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलिए सर, एक क्वेश्चन है, बता दीजिए।
पूछिए। सर मतलब कंडीशन होगा इसकी, नॉट हर्मिशियन की कोई कंडीशन होती है सर? नॉट हर्मिशियन की? हाँ मतलब नहीं नॉन बेटा, हर्मिशियन मैट्रिक्स नॉन हर्मिशियन मैट्रिक्स तो बेटा क्या बहुत कंडीशन सारी हो होती है? सकती है, बहुत सारी। उसकी कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं है। यही है कि ए इज नॉट इक्वल टू ए डेगर, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसा आपसे पूछेगा सर क्यों कोई? ऑप्शन दे रखे हैं कि ए प्लस ए डैगर या ए इंटू ए डैगर और ए डैगर इंटू ए या फिर ए डैगर माइनस ए, ये ऑप्शन दे रखे हैं सर। अरे भाई वो चेक करना है यार, ये बोलो ना मुझसे क्वेश्चन, तुम ऐसा मत बोलो नॉट हर्मिशियन की कोई डेफिनेशन होती है। देखो बोलो क्या क्वेश्चन। सर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स which of the which following of the is following matrix is not Hermitian? okay, following is not Hermitian. Yes sir. A plus A dagger. आपको जितना First आपने option. जितना पढ़ा है, आप ये सोचो कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट आपको करवा देता हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो ऐसे दिमाग को बिल्कुल मत सोचना कि कोई नई डेफिनेशन है। आपको बस वही चेक करके देखना है। क्या बेटा? पहला a प्लस ए डैगर, दूसरा A into A dagger a इंटू ए डैगर, थर्ड और थर्ड है A dagger into A ए डैगर इंटू ए, बात तो एक ही हो गई। और फोर्थ ऑप्शन है A dagger minus A. ए डैगर माइनस ए, ओके। हर्मिशियन के लिए क्या? अब पहले ऑप्शन को देखते हैं। मैट्रिक्स ए हर्मिशियन है क्या सर इसमें? ए के बारे में बेटा कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बिना उसकी इंफॉर्मेशन के भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। तुम देखो कैसे बनाएंगे। अगर मैं पहले ऑप्शन को लेता हूं तो कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है जब उसका डैगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, होता है ना ऐसा, ठीक है। यस सर। तो बेटा मैंने यही किया और इसको अंदर अप्लाई कर लिया, ये फॉर्म मिल गया ए डैगर डैगर। ये तो तुम जानते हो ए डैगर डैगर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मुझे कितना मिल गया? ए डैगर प्लस ए मिल गया। अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है ना? यस सर। तो ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है। पहला ऑप्शन गलत हो गया, ऐसे चेक कर, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे, ए इंटू ए डैगर, इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इसे भी चेक कर लेते तो कितना आ जाएगा बेटा? रिवर्सल लॉ लगता है डैगर लेने पे, इनवर्स लेने पे, ट्रांसपोज लेने पे। तो कितना हो जाएगा? ए डैगर का डैगर दिस इनटू ए डैगर। ए डैगर डैगर कितना हो गया? ए हो गया, इनटू कितना आ गया? ए डैगर आ गया। ये बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ गई जो मैट्रिक्स थी। तो ये भी हर्मिशियन है। आपसे नॉट हर्मिशियन पूछा। कम्यूट करेगा? हाँ जी बेटा, सर कम्यूट करेगा, नेसेसरी है? कम्यूट कहाँ करवाया हमने? करवाया नहीं हमने, तो रिवर्सल लॉ लगाया वे में। फोर्थ बचा, अब वो सेटिस्फाई करेगा नॉट हर्मिशियन को। आप चेक भी कर सकते हो, ए डैगर माइनस ए का डैगर दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए डैगर बन जाएगा, क्योंकि ए डैगर डैगर तो ए मिल जाएगा और ये आ गया माइनस ऑफ ए डैगर माइनस ए, ठीक है ना। तो माइनस आ रहा है तो ये मैट्रिक्स कैसी है? एंटी हर्मिशियन है, राइट। ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस, possible eigenvalues of the possible eigenvalues of a real orthogonal matrix, orthogonal matrix and of a unitary matrix R, सॉरी इसने बोला मैट्रिक्स R रेस्पेक्टिवली। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन प्लस माइनस 1 कॉमा e टू द पावर आइटा थीटा वेयर थीटा इज रियल। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 1। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है e टू द पावर आइटा थीटा
comma e to the power iota theta where theta is real. ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है that plus minus 1 plus minus 1 plus minus iota, which of the following is correct? बताइए बेटा। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। और ऑप्शंस क्यों गलत आप बोल रहे हो? सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही चाहिए था। इसमें पहला इसलिए गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, सेकंड इसलिए गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, थर्ड तो बेटा रियल है, रियल आइगन वैल्यूज तो दोनों की हो ही सकती है, और फोर्थ ये जो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन था ये इसलिए गया क्योंकि यूनिट मॉडुलस नहीं है सर उसकी। वेरी गुड, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट नहीं है। बहुत अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √2 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए था कितना? 1। तो ये चौथा इसलिए गया। बचा कौन सा? सेकंड ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो हो गए काफी सारे क्वेश्चंस, और प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं आप लोग लेके आइए। हाँ रियल, ठीक है ना, दोनों चाहे रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो चाहे यूनिटरी मैट्रिक्स हो, दोनों की आइगन वैल्यूज कैसी होती है? यूनिट में सर जैसे थर्ड में e raised to power थीटा और e raised to power लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, देखो कि आपको एक आइडिया मिल जाए। ये भी करेक्ट होता कि ये पहला लिखा होता है e टू द पावर प्लस माइनस आइटा थीटा, और दूसरा भी लिखा होता है e टू द पावर प्लस माइनस आइटा थीटा। दोनों की कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है आइगन वैल्यू, चाहे रियल ऑर्थोगोनल क्यों ना हो। एग्जांपल तुमने थोड़ी लास्ट क्लास में पढ़ा था, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, रोटेशन मैट्रिक्स ध्यान में आ जाना चाहिए सीधे सीधे। इसकी जो आइगन वैल्यूज आती है, जबकि रियल ऑर्थोगोनल है, फिर भी आइगन वैल्यूज क्या देता है? e टू द पावर प्लस आइटा थीटा और माइनस आइटा थीटा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये है, तो रियल का कोई परसेप्शन दिमाग में नहीं बनाना, आपको दिमाग में परसेप्शन किस चीज का बनाना है कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए।